Hello everyone, welcome to SwiftLearn, India's most sincere learning destination for classes 1 to 10. My name is Jagrat and here I am with a new series, Coordinate Geometry, for class 9th, ICSE and CBSE. For those of you who are new to this channel, let me tell you something about SwiftLearn. SwiftLearn provides 100% live interactive classes. Personalized attention is given to every student by having a maximum batch limit of 6 students per batch, a dedicated acad mentor team that works on your progress, and we cover whole syllabus based on the latest pattern of ICSE and CBSE. We provide you with the detailed progress report of your journey at SwiftLearn from your first test to your last test. We have the SATs so that you can rank yourself among the other students of SwiftLearn, and we take unlimited practice test series so that you can work on your progress and we can provide you the feedback. You are having subjective test series as well so that you can test your answer writing skills. So for those of you who have not already liked, subscribed and press the bell notification, please do that so that you never miss any future update. So guys, let's start with this new chapter, that is coordinate geometry, and it is quite an easy chapter. It's a new concept for you guys, but it's quite an easy one. You have must have seen the graph papers till now in your life, like the green color papers who are having a little bit of lines, vertical and horizontal lines on them. This chapter is about that only. Geometry means like building the things, like drawing the things and all, right? In geometry, you draw circles, triangles, squares, and rectangle. So in coordinate geometry, the things that are drawn on that green color graph paper, those are considered. Okay. So the learning objective of today are, we will learn what is a linear equation. Okay. This is a completely new concept for you guys. What is a coordinate geometry? Like what do we really study in coordinate geometry? What's a Cartesian plane? And what is coordinate? What are quadrants and what are sign conventions? Okay. These words seems new to you, but trust me, all of these words are are used by you, but you don't know that this is the name of that thing. Okay, so let's start with a real life example. Okay, so let us assume that you went to a market for shopping. Okay, and the amount of money you carried was limited, and you need to buy two things, a shirt and a jeans. Let us assume that the total amount with you is 1,000 rupees, and you want to buy a shirt that cost you 250 rupees, and jeans that cost you 500 rupees. So there are different scenarios, like you can buy two shirts and one jeans, or you can buy two jeans and no shirts, right? So how to represent this in a mathematical equation, like what's an equation and what how to represent this concept in mathematical equation? So we will assume that the number of the cost of the shirt, like the consider the cost of the shirt be x, okay, and the cost of jeans be y. Like let us presume that you don't know the cost of the shirt and the jeans. Okay, so when you want to represent it in the form of equation, it will be like this. Like you want to buy two shirts, that is 2 times x, plus one jeans, that is y, and you need to pay 1,000 rupees for that. Okay, this will help you determine that what is the budget of your shirts and the jeans if you are able to figure out x and y's. Okay, moving on, let us assume that you don't want to buy the shirts. Okay, so if you don't want to buy the shirts, the equation will be 2y plus 100, because now you are buying only the jeans, that is represented by y. So these things that you like represented in x and y manner, so for you I am repeating it again, better don't get scared from this x and y. It is just the shirts and the jeans. I can just write it like this, like it won't make a difference if I like write like this: two shirts, as for shirts, and one jeans will cost me around 1,000. Okay, it won't make a difference. But in maths, the things that are represented in the form of x and y. That's why x and y are coming. Okay, I think I've made myself clear that don't need to get scared from this x and y. And you guys have must these equations are known as linear equations. The equations that you form, like 2x plus y equals 200, and like 2y plus 1,000, those are known as linear equation. So what really is a definition of linear equation? Like earlier, I made you understand with the help of an example, right? So now let us figure out what really is a definition of a linear equation. Okay, an algebraic equation in which each term has an exponent of 1
एंड द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन रिजल्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन. तो बेटा इसमें उसने दो लाइक टू थिंग्स आर सेड हियर. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज algebraic equation. Algebraic equation means it should contain x and y. Each term has the exponent 1. That means the power of x and y should be 1. It should not be like this, like x power 2 and y power 2. It should not be like this or like this. Okay, or be that any number like 2 3. The power should not be there. The exponents are known as power, right? So the exponent should be 1 only. That is this and this. And when you draw a graph for this equation, I'll teach you that how to draw the graph of an equation. It should result in a straight line. The output of this equation, okay, should be a straight line. So guys, those of you don't know, like beta, this equation is the address for a line in a graph. Okay, so you're having graph paper, you're having your x-axis and y-axis that I'll be teaching you. So what does this means? This equation means in normal terms you can say that it is a kind of riddle. Like what is the number which when doubled and added to a number gives you 1,000? It is a form of riddle. But when we talk it in terms of graph, it represents something. It represents a line. Okay, and more specifically a straight line. It's an address of straight line. Okay, you can say that. So as we will dive deeper into the topic, your concept will be getting clearer and clearer. Okay, so don't just impatient मत हो. धीरे धीरे जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट के अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आती जाएंगी. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइक 2x प्लस वाई है, ये एक ग्राफ में एक लाइन का एड्रेस है. अब वो एड्रेस क्यों बोल रहा है, मैंने क्यों बोला कि एड्रेस है, क्योंकि बेटा लाइन तो कहीं भी हो सकती है ना, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, राइट. तो वो लाइन का एक एड्रेस दे रहा है, ये स्पेसिफाई करता है कि वो लाइन कैसी. ओके, सो दीज आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन. ये सारी की सारी लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, बस किसी में एक्स वाई जेड है, किसी में सिर्फ वाई है, किसी में सिर्फ एक्स है, लेकिन सबकी पावर अगर आप देखो तो सिमिलर है, दैट इज 1. किसी की पावर 2 3 और 4 नहीं. तो इन द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन वी हैव सीन सम टर्म्स लाइक एक्स वाई जेड. ये एक्स वाई जेड क्या है, इनको क्या बोलते हैं हम? टी शर्ट की जगह सीधे शर्ट क्यों नहीं लिख दिया, जीन्स की जगह सीधे जीन्स क्यों नहीं लिख दिया? ओके, तो बेटा इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एक्स वाई जेड जो आपकी इक्वेशंस में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं. द सिंबल दैट आर यूज्ड फॉर अ नंबर वी डोंट नो येट आर नोन एज can be like the symbols that like for the numbers that you don't know how many shirts you bought, you don't know how many jeans you bought. आपको पता नहीं आपने कितने पैसे दिए कितनी जीन्स का, जो भी चीज़ आपको पता नहीं है उसको एक इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक्स और वाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है. सो एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 7. तो एक्स आपका क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल आर देयर? तो बेटा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छा समझोगे. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको आप अपने मन से चेंज कर सकते हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड होते हैं. ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशंस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सीधे आपको बताता हूँ एग्जाम्पल. जैसे अगर आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 4/3x माइनस 7. तो बेटा x की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 आप कुछ भी लेते चलो. y उस हिसाब से चेंज होता रहेगा. जैसे अगर आपने x को यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 3 ले लिया तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 माइनस 7 कितना आ जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा, राइट. तो आपने चेंज तो x किया लेकिन y भी चेंज हो गया, क्योंकि y कितना आ गया? माइनस का 3 आ गया. तो y जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है पहली इक्वेशन में, और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल. लेकिन यही हम दूसरी इक्वेशन की बात करें तो अगर हम y को अपने मन से चेंज करते रहे तो x चेंज होता रहेगा. तो दूसरी इक्वेशन में y जो है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो x है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल. क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? पहली बात, x और y को हम वेरिएबल्स लेते हैं, और लाइक इफ एक वेरिएबल के टर्म में दूसरे को हम निकालें, लाइक y के x के टर्म में y को निकाल रहे हैं कि x वो है जो 4/3 से जब मल्टीप्लाई होता है और 7 से माइनस होता है तो वो y देता है. तो x तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके हिसाब से y भी चेंज हो रहा है, y डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे. दैट्स वाई y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इज इट अंडरस्टूड बेटा? जिन को बातें समझ में आ रही है प्लीज़ लीव अ लाइक एंड अ कमेंट. ओके, दैट रियली मोटिवेट्स अस. हमें भी अच्छा लगता है जब हम अपने बारे में कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं. आपको भी अच्छा लगता होगा जब टीचर आपको प्रेज करते हैं. तो जैसे स्टूडेंट्स जब टीचर को प्रेज करते हैं तो टीचर को भी अच्छा लगता है. सो प्लीज़ लीव अ लाइक एंड अ कमेंट इन द फॉर्म ऑफ योर अप्रूवल दैट यस सर हमें समझ में आ रहा है. ओके, और जो जो हमारे रेगुलर फॉलोअर्स हैं प्लीज़
go to www.swiftlearn.com and book your trial so that you can see कि 1-on-1 सेशन कैसा होता है. ओके, सो ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं. ठीक है, मूविंग ऑन. हमने अभी तक क्या पढ़ा, इक्वेशन पढ़ा. लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उसमें कुछ एक्स वाई जेड हमें दिख रहे थे. ओके, तो हमने बोला उनको वेरिएबल्स बोलते हैं. हमें ये पता चला वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट. नाम से ही क्लियर है इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा और डिपेंडेंट का मतलब क्या होगा. ओके, अब देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है. बेटा, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जाता है. ठीक है, जैसे अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेंस में बोले तो जैसे आप ये जो देखते हो ना ब्रैकेट में लिखे हुए 5,6, 1,2, 0,3, इन सबको कंबाइनली क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं. ठीक है, तो जैसे 2,5 एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो जो 2 है वो x की वैल्यू देता है और जो 5 है वो y की वैल्यू देता है. और हाँ, ऑर्डर्ड का मतलब ही ये है कि जो पहला डिजिट होगा वो हमेशा x को ही रिप्रेजेंट करेगा. ये कंपलसरी है. देखो ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन, ऑर्डर्ड पेयर मींस अ पेयर ऑफ टू ऑब्जेक्ट टेकन इन स्पेसिफिक ऑर्डर. ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. ये नहीं कि आप 5,2 लिख दोगे तो मैं ये समझ लूँ कि 5y है, मैं नहीं समझूंगा. अगर आपने 5,2 लिखा है तो मैं यही बोलूंगा कि x एक्सेस पे 5 होगा और y एक्सेस पे 2 होगा. ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर लिखने में सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस होती है. So now let us find the values of x and y if x minus 1, y plus 3 is equals to 4,4. तो बेटा अगर आप लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर करो, तो मैं क्या बोलता है, पहला टर्म किसकी वैल्यू देता है, x की पोजीशन देता है. दूसरा टर्म किसकी पोजीशन देता है, x की देता है. तो जब ये दोनों x की ही पोजीशन दे रहे हैं तो इन दोनों को इक्वेट भी तो कर सकते हैं. x minus 1 equals to 4. तो ये -1 जो है ये जंप कर जाएगा दूसरी तरफ को, राइट, दूसरी तरफ को ये जंप कर जाएगा. तो 4 + 1 दैट इज x equals to 5. आई थिंक आप लोगों को बातें समझ में आ रही है. बेटा समझ में आ रही है ना बातें, स्लोली समझने की कोशिश करो. तो ये देखो x minus 1 is equals to 4 and x equals to 5. आपका आंसर आ गया है, y आ गया. जिसको समझ नहीं आया एक बार फिर से समझाता हूँ. बेटा आपको ये इक्वेटिक फॉर्म में देखा था, इक्वेशन में लाइक इक्वल करके. तो मैंने बोला था कि ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला टर्म होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा टर्म जो होता है वो y को रिप्रेजेंट करता है. तो क्योंकि इसने यहाँ इक्वल का साइन लगा रखा है तो ये जो पहला टर्म है ये भी x को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो दूसरा टर्म है ये भी x को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. तो x और x को क्या करो, इक्वेट करो. जब दोनों x की बात कर रहे हैं तो इक्वल करो उनको, मतलब ये दोनों इक्वल है. तो x minus 1 equals to 4 and x equals to 5. That is the value for that. Okay, so now moving on, in defining the ordered pair we have introduced the word coordinate geometry. To understand, let us perform an activity to understand what really is like ordered pair की coordinate geometry में importance क्या है. Okay, so एक एक्टिविटी करते हैं आपकी क्लास में. इमेजिन करो, कर तो सकते नहीं हो, थोड़ा इमेजिन करो. आपकी क्लास में जितनी टेबल्स हैं, ठीक है, उन सबको हमने एक जगह जोड़ दिया. ओके, all the gaps are removed, every table of your class is joined together with the name of the children written on it. Okay, so represent each desk by a square. Each desk is in the form of square. So what will happen, you will get an output like this. आपको ऐसा आउटपुट मिला होगा. So let us see कि ये जो बच्चा, like this is the like table for example, let's say of a guy, like let's say for a she. Okay, for a girl is sitting, like उस एक लड़की का नाम यहाँ लिखा हुआ है. For example, we assume that her name is Riya. Okay, so अब मैं पूछ रहा हूँ कि what is the position of Riya in the form of ordered pair. तो आप क्या बोलोगे, sir, fifth column and third row. So Riya का ordered pair क्या बन रहा है, 5,3. क्या बात समझ में आ रही है. आपने अपनी क्लास की सारी जो चेयर्स हैं, सारी जो डेस्क हैं, उनको एक साथ अरेंज कर दिया चिपका के. ठीक है, सब में किसी ना किसी स्टूडेंट का नाम लिखा है. फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ कि यहाँ पर जागृत का नाम लिखा है. तो जागृत का ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा. ओके, सो कौन सा कॉलम है, व्हाट कॉलम इज इट, इट्स कॉलम 3. सो थर्ड कॉलम 5th रो में कौन बैठा है, जागृत बैठा है. ओके, सो दिस इज हाउ ऑर्डर्ड पेयर वर्क्स इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन. ओके, सो द फर्स्ट राइटिंग, सो अगर कोई लड़की सोनिया बैठी है 4th कॉलम एंड 1st रो में, तो उसका ऑर्डर पेयर आप क्या लिखोगे, 4,1 लिखोगे या 1,4 लिखोगे. ऑफ कोर्स 4,1 लिखोगे, क्योंकि इंपॉर्टेंस किसकी है, स्पेसिफिक ऑर्डर की है. 4 जब आप पहले लिखोगे तो पर्सन समझ जाएगा कि आप किसकी बात कर रहे हो, कॉलम की बात कर रहे हो. ओके, in the discussion above we have observed that position of any object lying on a plane can be represented with the help of two perpendicular line. तो हमें
ऊपर का जो हमने एक्टिविटी करी उससे ये पता चला कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक प्लेन पे लाई कर रहा है, प्लेन बेटा मतलब होता है एक सरफेस, ओके। जैसे ये जो पेज है ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इसको हम बोलते हैं प्लेन, ओके। अ प्लेन इज नोन एज अ सरफेस। एक प्लेन सरफेस जो होता है उसको आप क्या बोलते हो, प्लेन बोलते हो, ठीक है। आपकी वॉल एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। उसमें जब परपेंडिकुलर लाइंस आप खींच देते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन, तो वो क्या देता है आपको, एक कार्टेशियन प्लेन सा बना के देता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इन केस ऑफ सीटिंग प्लान वी रिक्वायर नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज, ओके। सो द सिंपल आइडिया फॉर दिस, ये जो आपने एक्टिविटी बनाई है, जो आपने टेबल्स बनाई, तो आपको जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन मिली, ये सिंपली आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक आइडिया देती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम करते क्या, वी आर हैविंग अ कोऑर्डिनेट प्लेन, जो आपका डेस्क थी जो अरेंज करी गई थी, वो एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेट प्लेन का। जो हमने बच्चों के नाम दिए और उनकी पोजीशन पता करी, वो थे पॉइंट्स, जो हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमें पता करने होते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पर है, वो पॉइंट कहाँ पर है, ये पॉइंट मार्क करो। तो ये जो एक्टिविटी थी, ये एक छोटा सा आपका बेस का एक रियल लाइफ हमने एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वर्क करती है, ठीक है। तो अब एक डेफिनेशन समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ठीक है, रेडी हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स ऑन अ प्लेन इज डिफाइंड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो ब्रांच है जिससे हम पॉइंट्स की पोजीशन पता करते हैं और इनके ऑर्डर्ड फेयर के फॉर्म में हम आप सबको बताते हैं। जैसे आपने कभी कभी अमेरिकन मूवीज सुनी होगी जिसमें वो बोलता है गिव मी योर कोऑर्डिनेट्स, तो वो बोलते हैं 6 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री ईस्ट। तो बेटा जो ग्लोब है हमारा, उसको भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म्स में ही डिवाइड किया गया है। जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। आई नो कि इतना अच्छा नहीं बना है, लेकिन फिर भी ट्राई करना समझने की। तो बेटा ये देखो, ये आपका, लिख रुको, ये आपका इक्वेटर हो गया, ये टॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये सॉरी कैप्रिकॉन हो गया, टॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ठीक है। ऐसे और भी खींची गई हैं लाइंस, इमेजिनरी लाइंस ऐसी और भी हैं। फिर उसके बाद ऐसी भी लाइन खींची गई है, ये ठीक है। तो अर्थ को भी एक कोऑर्डिनेट प्लेन के फॉर्म में डिवाइड किया गया है, ताकि जो मिलिट्री के लोग हैं या वैसे लोग हैं, वो आप उसको ऐसे थोड़ा बोलेंगे हाँ ये वाले एटीएम से राइट ले लेना, ठीक है। तो अब जब किसी को बताना होता है तो वो क्या बोलता है, लाइक 6 डिग्री नॉर्थ, तो मतलब वो नॉर्थ में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब 6 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री ईस्ट, तो वो फिर इस तरह से यहाँ पर पॉइंट आउट हो जाती है लोकेशन। उसमें कोऑर्डिनेट ज़्यादा होते हैं, उसमें ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं ज़्यादा होते हैं। लाइक अर्थ का जब आप बात करो तो 3 या 4 ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, तब जाके किसी की आप एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हो, क्योंकि वो अर्थ क्या है, एक 3D शेप है, ओके। यहाँ पर माउंटेन्स भी हैं, रिवर्स भी हैं, लेक्स भी हैं, तो कोऑर्डिनेट्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन हमारे पास इजी बात क्या है, वी आर हैविंग ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स, एक्स एंड वाई। द कोऑर्डिनेट्स आर द सेट ऑफ वैल्यूज दैट हेल्प अस टू शो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, ओके। सो एक्स पॉइंट की पोजीशन क्या होगी बताओ, तो D3, आपकी एक्स पॉइंट की इक्वेशन होगी। सो कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, कोई भी 2 डायमेंशनल प्लेन फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ अ वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस, सॉरी, formed by the intersection of vertical line that is y axis and a horizontal line that is x axis. एक कोऑर्डिनेट प्लेन एक 1D प्लेन होता है जो इंटरसेक्शन से बनता है एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन का। मतलब अगर आपने एक प्लस का साइन बनाया लाइक दिस, एक्स राइट हैंड साइड पे एक्स लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स डैश लिखते हैं, फिर एक वर्टिकल लाइन आ गई वाई एंड वाई डैश, ओके। तो ये जो शेप जैसा बना रहा है, जो अगर मैं इसको एक स्क्वायर के अंदर डाल दूं, ये, तो ये जो स्क्वायर के अंदर का एरिया है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाएगा। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके आप या तो आप पता लगाओगे इन पॉइंट्स की दूरी, या तो आप बताओगे कि ये पॉइंट कितनी दूरी पे है, ओके। सो एक कार्टेशियन प्लेन जो होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को डिवाइड करके बनता है। ये इस प्लेन को 4 हिस्सों में तोड़ता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। द 4 पार्ट्स फॉर्म बाय क्रॉसिंग ऑफ दीज 2 लाइंस आर नोन एज कोऑर्डिनेट्स। The first box is known as first quadrant, the second is known as second quadrant, third and fourth quadrant. That's how. लेकिन how do we count them? Like how should we know that this is the first quadrant or this is the first quadrant? So beta, we always move from left hand side to right hand side. Okay? So sorry, we always move from anti-clockwise direction. So 1, 2, 3, 4. Anti-clockwise में आपको काउंट करना है, तो आप हमेशा सही कोऑर्डिनेट काउंट करोगे। ये पहला है, ये दूसरा है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ओके। सो 1, 2, 3, 4, these are your 4 coordinates, और द लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं दैट इज द कोऑर्डिनेट फॉर 0,0। जहाँ पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस इंटरसेक्ट करती है, दैट आर द पॉइंट फॉर 0,0, ठीक है।
तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज में हम चलते हैं, ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब एबिस्का क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस से पॉइंट की जो दूरी होती है उसको हम एबिस्का बोलते हैं, ओके, एंड एक्स एक्सिस से जो पॉइंट की दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ओके। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस नोन एज एब्सिसा and the point that is and the distance of a point from the x-axis is known as the ordinate. So let us visualize जो भी अभी हमने तक पढ़ा है उसे एक बार विजुअलाइज करते हैं, ओके, क्योंकि विजुअल्स दिमाग में ज़्यादा देर रुकते हैं, इसीलिए हमारी हर टॉपिक जो है एक वीडियो के बाद फॉलो अप होता है, ओके। लेट मी शेयर द साउंड सो दैट आप लोग भी इसे सुन पाए। इज इट शेयर्ड? यस इट इज, ओके। Hi, I'm Lucy, and in this video we're going to learn all about the basics of graphs. What are axes? How do coordinates work? And what are quadrants? Starting from the beginning, notice how the horizontal axis is called x, and the vertical axis is called y, and they all start at 0 here in the middle, which is known as the origin, with the positive numbers going in. सो गाइस इससे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर एक्स डैश आ जाता है, ओके, एंड यहाँ पर एक्स डैश भी होता है, मतलब हमने गलत नहीं सिखाया है, यहाँ पर वाई डैश होता है, ओके, यहाँ पर एक्स डैश, यहाँ पर वाई डैश, ये बात भी याद रखनी है, ओके। मूविंग ऑन। These directions and the negative numbers going backwards and downwards. It's really important. So बेटा ये बात अभी हम लोग की वीडियो में कवर नहीं हुई थी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने मार्क तो कर लिया, लाइक अब मार्क कैसे करोगे, तो बचपन में आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, राइट, अभी भी बचपन ही चल रहा है, ठीक है, आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी आपकी प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ पर आप 0 लिखते थे, यहाँ पर आप 1 2 3 लिखते थे, यहाँ पर इंटीजर्स लिखते थे, राइट, -1 -2 -3। सो ऐसा ही होता है, एक्स एक्सिस पूरा ऐसे ही होता है, लाइक पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स। सिमिलरली 0 पॉइंट पे फिर से आओ, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव नंबर्स, नीचे आओगे तो नेगेटिव नंबर्स। इफ़ यू कैन रिलेट दिस विद इंटीजर्स आपको काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा। इंटीजर्स में लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते थे, 0 से जब ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, 0 से नीचे जाओगे तो नेगेटिव नंबर्स, ओके। Important to remember that the x-axis is the horizontal one. Just think, x is across, so x goes across. So now we know all about how the axes work. Let's make use of them. So coordinates are written as 2 numbers, separated by a comma and with brackets around. The first number is the x coordinate and the second number is the y coordinate. This is easy to remember because the first numbers are long and the second one is up or down because you have to go along the corridors before you can go up the stairs. Or you might just like to think of it alphabetically. X comes before Y. So what are the coordinates of this point? Pause the video, have a think. So guys बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। क्या बोला हमने कि पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है वो x होना चाहिए और दूसरा वाला जो है वो y होना चाहिए, राइट, यही तो बोला हमने। सो गाइस देखो, ये पहला कोऑर्डिनेट x होना चाहिए तो x पे चल के जाओ, यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, सो दिस इज आप 1 पे पहुंचे, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1, ठीक है। अब आपको जाना है लाइक ऊपर को, अब ऊपर को चढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ जाते हैं तो कितना ऊपर गए 4 तक गए, सो जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो हो गया 4, ओके, 1,4, ठीक है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आप कभी कभी सिर्फ कोऑर्डिनेट भी बता सकते हो। जैसे अगर मैंने आपको पॉइंट दिया 3,4 और पूछा ये कौन से कोऑर्डिनेट में, तो अगर आप ध्यान दो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब कुछ प्लस ही है, तो जो प्लस कॉमा प्लस वाले पॉइंट्स होते हैं ये आपके कहाँ आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो एक्स आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, राइट, एक्स इज नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सो एक्स नेगेटिव है, वाई क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर को देखो तो पॉजिटिव है। तो -1 कॉमा प्लस वाले जो कोऑर्डिनेट्स है, लाइक अगर आपको -2 कॉमा -3 दिया होता तो वो कहाँ आ रहा होता, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा होता। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो सब दोनों माइनस है, तो इफ़ यू आर हैविंग बोथ द नेगेटिव्स तो ये आपके थर्ड कॉलम में ऐसे कोऑर्डिनेट्स आएंगे। और अगर आपके पास कभी आपको दिया है
जिसमें आपको लाइक फॉर एग्जांपल 4, -5 दिया, ठीक है। तो 4 पॉजिटिव हो गया और y माइनस हो गया, ठीक है। तो इस बार क्या है, x पॉजिटिव है और y माइनस है, ठीक है। सो दीज लाइक ये जो मैंने आपको बताया, इससे आप कभी कभी क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि ये जो पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो आप बता सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द साइंस। आप साइन का सीक्वेंस देख लो, यू विल नो दैट हाउ द वेयर द क्वाड्रेंट इज लाइंग, sorry, where the point is lying in the quadrant. And click play when you're ready to check. It is 1, 4 because it is 1 along from the origin and 4 up. Where would -4, 6 go on the grid? Pause the video, have a think. So बेटा guys जल्दी बताओ, -4 और -6, आप लोग तो बहुत स्मार्ट हो गए हो, जल्दी से बताओ -4 और -6 कहाँ आएगा। -4 किसको रिप्रेजेंट करता है, x को, और 6 किसको रिप्रेजेंट करता है, y को। चलो x पे -4 चलते हैं, लेट्स सी। x पे -4, तो 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे गए, x पे -4 पहुंच गए। अब हमें जाना है y पे +6, सो वी शुड गो अप। तो y पे हमें जाना है +6 जाना है। तो आपका कोऑर्डिनेट कहाँ है, यहीं कहीं है, यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये लाइंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपके खाली आपके इमेजिनेशन के लिए ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है। तो योर पॉइंट इज राइट हियर, -4, 6, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। वेरी गुड, जिन लोगों ने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन किया था, वेरी गुड। बेटा जब भी क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज किया करो, खुद करने का टाइम। And click play when you're ready to check. Did you think it was here? So it's -4 in this direction and 6 squares up. Coordinates are really useful for maps, for GPS systems, for computer games, for pixels on screens. And these are known as Cartesian coordinates, in honor of the man who developed them in the 17th century. Notice how the graph is divided into 4 sections. These are called quadrants. Notice how they're numbered in an anti-clockwise direction, starting at 1 and going around to 4. So there we have axes, coordinates and quadrants. In the next video, we're going to look. So guys, I think अच्छे से विजुअलाइज हुआ होगा, ओके। सो आई होप आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा हो। जिन लोगों को हमारा ऑनलाइन कंटेंट काफ़ी पसंद आता है, प्रेजेंटेशन वगैरह, प्लीज़ बुक योर ट्रायल्स एंड सी कि हमारे पास अदर चैप्टर्स का क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। और आप लोगों को विजुअलाइज करने से चीज़ें ज़्यादा अच्छी याद होती है। तो ऑनलाइन एजुकेशन जितनी बुरी बताई जा रही है उतनी बुरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास वीडियो एड बहुत होता है और हम जो देखते हैं वो हम जल्दी सीखते हैं, राइट। और 1-on-1 क्लासेस में इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा होता है। आपके पास जो भी डाउट आ रहे हैं आप टीचर से पूछ सकते हैं, ओके। सो आई विश कि आप लोग जल्दी से एक ट्रायल बुक करें एंड देखें, ओके। So coming to the example, let us see. In a coordinate plane below, point 11 is represented by the coordinate. ये like इसमें इन्होंने सीधे like example ही दे रखा है कि जैसे अगर आप L पॉइंट पे देखो तो उसके कोऑर्डिनेट है -3, like -3, 1,5। तो देखो कैसे आया, ये -3 गया, ओके, एंड 1.5, दिस इज द हाइट ऑफ 1.5, तो यहाँ पर उसे लिख दिया गया, ठीक है। Here it is just represented कि इस मैनर में। और बेटा अभी आपकी क्लास like in class 9 you can represent it with this dotted lines. After that, like as you can understand the topic, you can remove these lines. These lines are not important. These dotted line, only the points are important once you get the concept. Okay? So ये वाला जो points है इसको खुद ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, रफ सा डायग्राम बनाओ। जिन लोगों के पास ग्राफ कॉपी नहीं है प्लीज रफ सा डायग्राम बनाओ एंड ट्राई करो। कैसे बनाएंगे रफ सा डायग्राम, ओके। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। सिमिलरली ड्रॉ करते चले जाओ 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे, 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे आप ऐसी लाइंस बनाते चले जाओ, आपको एक ग्राफ कॉपी मिल जाएगी। फिर कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करो एंड अपना आंसर निकालो। जिन लोगों ने मार्क कर लिया, लेट्स मूव ऑन सो दैट आप देख सकते हो। आपने ये जो 3 पॉइंट है इनको प्लॉट कर दिया है, ठीक है। और वर्टिकल डिस्टेंस आपको निकालनी है बी और सी पॉइंट की, लेट्स सी। सो ये आपने कर दिया, बी और सी पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी है। तो बेटा देखो एक्स एक्सिस यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। लेकिन वाई एक्सिस से बड़ा है, वाई एक्सिस यहाँ 0 है और यहाँ क्या है 4 है। तो क्लियरली इन और इन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 है, क्योंकि वाई एक्सिस क्या बता रहा है, एक तरह से डिस्टेंस ही बता रहा है ये वाले पॉइंट की और ये वाले पॉइंट की। तो ये वो यहाँ पर ही आ गया, ओके। तो ये इस तरह का कुछ बन रहा था। जिन लोगों ने पॉज करके वीडियो करी खुद, वेरी गुड, कीप इट अप बेटा, ओके। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये और कहाँ कहाँ काम आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके स्कैनर्स, आपकी फोटोकॉपी मशीन, इन सब में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि कंप्यूटर कैसे पता करेगा कि कौन सा लेटर कहाँ लिखा है। तो वो अपने लाइक इंटरफेस में, अपने जो सॉफ्टवेयर है
उसमें जो पूरी चीज़ है उसको ग्रिड्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। पूरा जो पेपर होता है आपका उसको मैथ्स की कॉपी जैसा बना देता है। तब उसे पता लग जाता है कि हाँ, फर्स्ट से ये वाले बॉक्स में मुझे ये इमेज डालनी है, ये वाले बॉक्स में मुझे ये इमेज डाल दी है, और आपको एक फाइनल आउटपुट मिल जाता है। ओके, सो दे आर यूज इन ऑफ कोर्स जीपीएस में मैंने आपको बता रखा है कि समुद्र में जब लोकेट करना होता है लोगों को, बिकॉज लाइक समुद्र में तो क्वाइट इंपॉर्टेंट, लाइक ओशन जो है वो एक प्लेन शेप जैसा है एंड वी नीड टू कोऑर्डिनेट कि वो शेप कहाँ को जा रहा है। सो व्हाट वी विल से कि हाँ इतने डिग्री ईस्ट है, इतने डिग्री नॉर्थ है। ओके, सो द कोऑर्डिनेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रियल लाइफ। ओके, सो आज हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े, तो आज हमने पढ़े हैं, हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ओके, एक काम करते हैं, मैं आपको एग्जांपल भी देते जाता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो बेटा हमने पहले पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, आपका जो 2x+3 वाली टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं इनको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ये x+y+z भी हो सकता है, राइट। 2x+y+z = 2। बस व्हाट इज द कंडीशन, पावर जो है, एक्सपेंड की पावर जो है वो 1 ही होनी चाहिए। ये ग्राफ कैसा देते हैं, स्ट्रेट लाइन देते हैं। अगर आप एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे, जो हम अपनी फर्दर आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, आप नोटिस करोगे कि वो हमेशा क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन ही बनती है। नाउ कमिंग ऑन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, लाइक जब आप लाइंस बनाना वगैरह सीखते हो, पॉइंट्स को पॉइंट आउट करना, लाइक पॉइंट्स को प्लेस करना सीखते हो कोऑर्डिनेट प्लेन में, वो सब किस में पढ़ा था हमने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। कार्टेशियन प्लेन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि भाई जब एक्स एक्सेस, सॉरी ये तो वाई थी, जब आपने एक वर्टिकल लाइन ली वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, और उन्होंने जब एक दूसरे को काटा, तो ये जो शेप बना, ये जो फिगर बना, इसको हम बोलते हैं क्या, कार्टेशियन प्लेन। ओके, इनके 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, वी आर हैविंग 4 कोऑर्डिनेट, एंटी क्लॉकवाइज में बोलना है, 1 2 3 4। तो 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग करनी है। इनमें हमने साइन कन्वेंशन भी पढ़े कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, लाइक द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज हैविंग प्लस प्लस साइन कन्वेंशन, सेकेंड कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस प्लस करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसका जो एक्स है वही नेगेटिव हो जाता है। ओके, और फिर इसके अपोजिट होता है, ये माइनस प्लस का प्लस माइनस हो जाएगा, और ये जो प्लस प्लस है इसका माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो एंजॉइंग लगी होगी। ओके, एंड आई होप आप ये एक्स्ट्रा टाइम क्वेश्चन वीडियो पॉज करके करना, तभी आप लोगों को मजा आएगा, आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। ओके, पॉज करो वीडियो, क्वेश्चन देखो एंड खुद सॉल्व करो। This is Jagrat signing out. I hope you enjoyed the video, and please press the bell icon and press the like button as well, so that I can be motivated and present the next video quite sooner. Bye.